Good morning. In the last classes, we were discussing about the convolution problems, and we discussed the problems related to continuous time systems as well as discrete time systems. And we saw many problems. There is one more type of problem related to convolution. Let us first write down the problem. The response of a linear time invariant system. Response of an LTI system to an input xt is yt if xt is equals to 2 e to the power 3 minus 3t ut and these response to and this response to dy by dt is equals to minus 3yt plus 2 e to the power minus t minus 1 ut into ut t minus 1 कर लो is minus 3yt plus 2 e to the power minus t minus 1 u t minus 1. Find the impulse response of the system. तो ये क्वेश्चन है, हमें xt दिया हुआ है, हमें dy by dt दिया हुआ है और ht पूछ रहा है. तो देखो इस तरीके क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करते हैं. जो उसने दिया हुआ है उसी को लेके चलते हैं. xt इज इक्वल्स टू दिया हुआ है 2 e to the power minus 3t ut. हमें पता है yt इज इक्वल्स टू xt कन्वोल्यूशन ht. और अगर मैं dy by dt कैलकुलेट करूं सो इट कैन बी dy by dt xt कन्वोल्यूशन ht. तो ये हमें पता है, ये हमें निकालना है. तो ये कैलकुलेट कर लो. सो डी बाई डी टी एक्स टी को करो कैलकुलेट. डी बाई डी टी एक्स टी इज इक्वल्स टू minus 6 e to the power minus 3t ut plus 2 e to the power minus 3t del t. और हमें पता है एफ टी इंटू डेल टी इज इक्वल्स टू एफ जीरो इंटू डेल टी. तो यहाँ पे अगर मैं टी इज इक्वल्स टू जीरो रखूंगा तो मुझे मिलेगा 6 ई टू पावर माइनस 3t यू टी प्लस ये जीरो हो जाएगा 2 डेल
टी। इस वैल्यू को उठा के इधर पुट कर दो, you will get dy t by dt is equals to minus 6 e to power minus 3t ut plus 2 del t to be convolved with ht। तुम्हारे पास आ जाएगा -6 e to power -3t ut कन्वोल्यूशन ht प्लस 2 del t कन्वोल्यूशन ht। अब देखो हमें dy बाई डी टी इसमें दिया हुआ था, dy बाई डी टी क्या दिया हुआ था, माइनस टी वाई टी प्लस 2 e to the power minus t minus 1 ut minus 1। तो मैं इसको एक बार और लिख लेता हूँ, -3 इंटू 2 e to the power minus 3t ut कन्वोल्यूशन एच टी प्लस 2ht। डेल टी कन्वोल्यूशन एच टी विल बी एच टी। तो यहाँ से मिल जाएगा हमें, कंपैरिजन करोगे एच टी इज इक्वल्स टू e to the power minus t minus 1 u t minus 1। इसको आप देखोगे ये एक्स टी है, एक्स टी कन्वोल्यूशन एच टी इज वाई टी, ये भी ट्रू है। ठीक है, अगर हमें किसी फंक्शन का एच टी दिया हुआ है तो दिस इज नथिंग बट एच टी इज नथिंग बट सिस्टम। तो जो हम पहले कैलकुलेट कर रहे थे लीनियरिटी, कॉजलिटी और स्टेबिलिटी, क्या अब कैलकुलेट कर सकते हैं? तो देखते हैं सबसे पहले कॉजलिटी of the system if Hn or Ht is given। देखो Rn is equals to Xn convolution with Hn so Rn is equals to minus k is equals to minus infinity to infinity xk h n minus k। इसको मैं लिख सकता हूँ k is equals to minus infinity to minus 1 xk h n minus k। और और इसको उल्टा भी करके लिख सकते हैं हम, यहाँ पर h लिख सकते हैं और यहाँ पर x लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। प्लस सिग्मा
k is equals to 0 h 0 xn plus k is equals to 1 to infinitive इसको मैं फिर से लिख देता हूँ एक बार वाली चीज is equals to k is equals to minus infinity to 1 minus 1 h k x n minus k plus k is equals to 0 h 0 x n plus sigma k is equals to 1 to infinitive h k x n minus k। अगर तुम ये वाली वैल्यूज देखो k अगर नेगेटिव है तो यहाँ तुम्हें क्या मिलेगा? इफ k इज नेगेटिव then you will get x n plus 1 x n plus 2 and so on. So this term is related to future and this term is related to past and this term is related to present. यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? x n minus 1 x n minus 2 and so on. So this is related to past, this is related to future, this is related to present. अब देखो if hk is equals to 0 और k लेस देन 0, अगर hk एक कॉजल सिग्नल है, इफ hk इज कॉजल सिग्नल, वही ये सिर्फ किस पे एग्जिस्ट कर रहा है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर। इट मीन्स इफ hk is or the impulse response of the system, that is hn, is depending upon the present and past value only, it is not predictable or it is not depending upon the future values, it is only depending upon the past and present values, then what would happen? यानी कि ये वाली टर्म अगर ये 0 हुआ फ्यूचर के लिए तो ये वाली टर्म आपकी 0 हो जाएगी। तो सिस्टम आपका सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट पर डिपेंड करेगा। इट मीन्स अगर हमें ओवरऑल सिस्टम की बात करनी है, द रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम, if we talk about the response of the system yn, for yn to be causal, hn must be causal। ये लाइन, अगर आप किसी भी सिस्टम के रेस्पॉन्स को कॉजल चाहते हो तो उसका जो इम्पल्स रेस्पॉन्स है वो कॉजल होना चाहिए। तो ये वाली कंडीशन भी हमने देखी थी, कॉजल कन्वोल्यूशन कॉजल इज इक्वल्स टू कॉजल। तो ये वाली बात मैंने आपको लास्ट टाइम ही बताई थी कि अगर कहीं पर आपको ut, यहाँ पर xt ut है, कन्वोल्यूशन ut मिल जाता है इस तरीके से, अगर आपको कोई टर्म मिल जाती है या आपको ut इंटू ut माइनस स्टॉक की टर्म मिल जाती है तो आप लिमिट डायरेक्ट क्या कर देते हैं? 0 to t। तो ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि फंक्शन क्या बन गया? रिस्पॉन्स क्या बन गया? कॉजल। तो अगर किसी भी कॉजल सिस्टम के साथ कन्वोल्यूशन करोगे तो आपको कॉजल मिलेगा। बट यहाँ मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर yn को कॉजल होना है या yt को कॉजल होना है तो ht मस्ट बी कॉजल। तो किसी भी सिस्टम का अगर इम्पल्स रिस्पॉन्स कॉजल है या नहीं है
उसी के बेसिस पे हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि रेस्पॉन्स कॉजल होगा या नहीं। अगर इम्पल्स रिस्पॉन्स कॉजल है तो एक प्रोबेबिलिटी ये बन जाती है कि सिस्टम भी कॉजल होगा। बट अगर इम्पल्स रिस्पॉन्स कॉजल नहीं है तो 100% सिस्टम नॉन कॉजल होगा। ठीक है। देखो इसमें इसी में जो क्वेश्चन हम पहले एक बार कर रहे थे उसी क्वेश्चन से रिलेटेड देखो। इफ एच टी इज कॉजल, हमने क्या माना है, एच टी इज कॉजल, तब केस वन बनता है एक्स टी इज ऑल्सो कॉजल। वाई टी क्या बन जाता है, वाई टी इज इक्वल्स टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स टी एच टी माइनस टॉ डी टॉ। मैं अगर ये दोनों कॉजल हैं तो आप डायरेक्टली यहाँ पर 0 टू टी की लिमिट ले सकते हो और यहाँ पर आप 0 टू एच टी माइनस टॉ डी टॉ कर सकते हो। दिस वुड बी इक्वल टू वाई टी। ठीक है। और अगर एक्स टी कॉजल नहीं होता है, केस टू, केस टू if xt is non-causal, it means it is existing for t less than 0। जैसे सपोज एक कंडीशन आती है कि xt is equals to 0 for t less than -2 and defined for t greater than equal to -2। एक फंक्शन है xt जो t लेस देन 2 से पहले, यानी कि ये जो -2 से पहले है, ये कोई फंक्शन इस तरीके का सिग्नल है x कि -2 से पहले ये 0 है और -2 के बाद में ये डिफाइंड है, तो ये राइट हैंड साइड सिग्नल है but it is not causal signal। In that case what would happen, in that case x t जो है वो t लेस देन -2 पर 0 होगा। अगर मैं इसको लिखूं x t माइनस टॉ इज इक्वल्स टू 0 और t माइनस टॉ लेस देन -2, देन टॉ क्या हो जाएगा, टॉ वुड बी ग्रेटर देन t प्लस 2। इट विल डिफाइन एज द अपर लिमिट ऑफ द इंटीग्रेशन। सो हम यहाँ पर डायरेक्टली अपर लिमिट ले सकते हैं। इसमें एच टी तो हमारा कॉजल है। इन दैट केस वाई टी वुड बी 0 टू t प्लस 2 एच टी एक्स टी माइनस टॉ डी टॉ। अगर दोनों कॉजल हैं तो 0 टू t, अगर एक कॉजल है इसको एज इट इज रखो, इस वाले की लिमिट्स यहाँ से डिफाइन कर लो और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, और
-2 to t ht, sorry, xt ht minus tau, h तो आएगा d tau, दोनों चीजें ठीक है। xt की वैल्यू कहां से थी, -2 से इंफिनिटी, और ht कहां से डिफाइंड है, 0 टू t। तो ये चीज है, देखो xt की वैल्यू कहां से है, -2 से डिफाइन हो रहा है, -2 से। तो अगर x tau पहले ले रहे हो तो -tau टू t लिमिट आएगी, और अगर h tau पहले ले रहे हो तो आप डायरेक्ट लिमिट यहां से निकाल सकते हो। अब ये वाली चीज आपको परेशान नहीं करेगी, लिमिट्स वाली, कि अगर किसी भी कन्वोल्यूशन में 0 टू t प्लस 2 इस तरह से है तो हम इससे कंपैरिजन करके लिमिट्स डिफाइन कर सकते हैं डायरेक्ट। नेक्स्ट इज स्टैटिक और डायनेमिक सिस्टम। स्टैटिक और डायनेमिक सिस्टम। देखो हमने ये देखा था कि yt is equals to xt convolution ht, it is valid only for LTI system। तो यानी कि जब हमारा LTI systems होंगे then only it is valid। जब हमारा HT जो है LTI होगा, लीनियर टाइम इनवेरिएंट होगा, in that case convolution is valid, otherwise convolution is not valid। तो अगर कन्वोल्यूशन को या सिस्टम रेस्पॉन्स को चेक करना है तो सिर्फ कन्वोल्यूशन से निकाल सकते हैं, तो हम सिर्फ एलटीआई सिस्टम्स की रिस्पॉन्स को देख रहे हैं। अब अगर मैं इसमें स्टैटिक और डायनेमिक देखना चाहता हूं, या मैं मेमोरी और नॉन मेमोरी देखना चाहता हूं, तो मैंने आपको बताया था कि द ओनली एलटीआई सिस्टम विच इज स्टैटिक, तो ये हमने पढ़ा था कि ओनली एलटीआई सिस्टम विच इज स्टैटिक is amplification, RT is equals to AIT, RT is equals to AIT is amplification, where A is constant, A is constant। in that case HT क्या हो जाएगा, HT would be A del T, so YT is equals to XT convolution A del T would be equal to A X T। So the only possibility of an LTI system to be static is the system response should be either impulse signal multiplied by a constant value। ठीक है, एक पॉइंट लिख लेते हैं, नोट अभी तक की समरी में। फर्स्ट, इफ एच टी इज नॉन कॉजल, in that case yt is non-causal or anticipatory or not physically realizable।
If HT is non-causal, in that case YT would be non-causal or anticipatory or not physically realizable. And if HT is equals to multiple of del T, in that case YT would be static. YT would be static. बात करते हैं स्टेबल और अनस्टेबल सिस्टम्स की. स्टेबल और अनस्टेबल सिस्टम्स की. You know, yt is equals to minus infinity to infinity h tau x t minus tau d tau. स्टेबिलिटी कहां से आइडेंटिफाई होती है? बीबो स्टेबिलिटी. इट मींस बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट. इफ xt is bounded, in that case xt minus tau is bounded. What do you mean by bounded? Bounded means finite value or value that is nothing but infinity. It is always less than infinity. Bounded means signal having a finite value as t tends to infinite. As t tends to infinite, यानी कि सिस्टम की वैल्यू ना तो इनफाइनाइट हो और हमेशा लेस देन इनफाइनाइट हो. लेस देन इनफाइनाइट मीन्स फाइनाइट. एज t टेंड्स टू इनफाइनाइट, इट मीन्स कि ये वाली वैल्यू क्या होगी? बाउंडेड. और अगर मैं इस सिस्टम को बाउंडेड कराना चाहता हूं तो ये जो इंटीग्रेशन है, सपोज ये वैल्यू m है, बाउंडेड है, तो ये वैल्यू m हो गई. तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? अब m माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी h tau d tau. तो ये वाली जो वैल्यू है, तो yt इज इक्वल्स टू क्या हो गया? ये वाली वैल्यू अगर बाउंडेड होनी है तो ये इस टोटल इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होनी चाहिए? लेस देन इनफाइनाइट. तो यही स्टेबिलिटी की कंडीशन है कि माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी मॉड h tau should be less than infinite. इसमें अगर मैं इसको बोल रहा हूँ बाउंडेड, बाउंडेड के लिए हम सिग्नल को मोड ले लेते हैं उसका. सिग्नल इज बाउंडेड, या तो वो माइनस की लिमिट में जाए या प्लस की लिमिट में, चेक करो, एक ही बात है. तो उसको हम मॉड ले लेते हैं. तो यहाँ पर भी h तो एक मॉड आ जाता है d tau माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी. अगर इसकी वैल्यू सपोज फाइनाइट है, अगर इनपुट बाउंडेड है, स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं? इफ इनपुट इज बाउंडेड देन आउटपुट शुड आल्सो बी बाउंडेड. सो इनपुट इज बाउंडेड मीन्स सपोज उसकी कोई कांस्टेंट वैल्यू m है. सो आउटपुट कब बाउंडेड होगा? जब ये वाली वैल्यू भी बाउंडेड होगी. बाउंडेड मीन्स लेस देन इनफाइनाइट होगी. तो ये कंडीशन आ गई आपकी स्टेबिलिटी. अगर आपको किसी भी सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स दिया हुआ है, सो माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी मॉड h tau d tau should be less than infinity. In that case only system response will be eligible for Bibo stability, or as the xt is bounded, yt will also be bounded. Similarly,
for discrete time systems, k is equals to minus infinity to infinity mod hk should be less than infinite. So ये दो कंडीशन है. ये दो कंडीशन है. इन दैट केस सिस्टम विल बी स्टेबल. हम देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा. क्वेश्चन है एच टी इज इक्वल्स टू e to the power alpha t and e to the power beta t for t greater than equal to 0 for t less than 0. The system is stable for option A alpha greater than 0, beta greater than 0, option B alpha greater than 0, beta is less than 0, option C alpha is less than 0, beta is less than 0, option D alpha is less than 0, beta is greater than 0. ठीक है. ये क्या कह रहा है कि इम्पल्स रिस्पॉन्स दिया हुआ है सिस्टम का e to the power alpha t for t greater than 0 greater than equal to 0, e to the power beta t for t less than equals to 0. सो अगर मैं इस कर्व को ड्रॉ करूं तो देखो ये इस तरीके के कर्व्स बनेंगे. कुछ इस तरीके का कर्व बनेगा एच टी. ठीक है. सो ये e to the power alpha t e to the power beta t, तो बीटा ग्रेटर देन 0, अल्फा ग्रेटर देन 0. e to the power alpha t for alpha less than 0, e to the power beta t for beta greater than 0. बीटा लेस देन 0, अल्फा लेस देन 0. सॉरी, ये आएगा बीटा लेस देन 0, ये आएगा बीटा लेस देन 0 और ये वाला आएगा बीटा ग्रेटर देन 0. एच टी एक और लास्ट बनेगा e to the power alpha t for alpha greater than 0 and beta greater than 0. अब मुझे बताओ ये चार ऑप्शंस तुम्हारे पास हैं. सपोज ये ऑप्शन ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है. इसमें कौन सा सिग्नल स्टेबल सिग्नल है? तो एज टी टेंड्स टू इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट द सिस्टम रिस्पॉन्स शुड बी टेंड्स टू 0 और ए फाइनाइट वैल्यू. इस वाले केस को देखते हैं. एज टी टेंड्स टू इनफाइनाइट system response is going to infinite. At t tends to minus infinite, system response going to minus infinite. इसके केस में देखते हैं तो ये ऑप्शन तो नहीं हुआ. इसमें देखो
एस टी टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये वाली वैल्यू 0 की तरफ जा रही है, तो ये तो ठीक है। बट एस टी टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट, इसकी वैल्यू प्लस इनफाइनाइट की तरफ जा रही है, माइनस इनफाइनाइट की तरफ जा रही है, तो ये नहीं हुआ, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं है। इस वाले ऑप्शन के लिए देखते हैं, तो पहले इसको देखते हैं। एस टी टेंड्स टू इनफाइनाइट, रेस्पॉन्स इज गोइंग इनफाइनाइट, सो ये नहीं है, ये है, सो ये है और ये है, तो ऑप्शन इज बी। ठीक है, तो हमारा, मैंने आपको पहले भी ये चीज बताई थी जब हम स्टेबिलिटी डिस्कस कर रहे थे, कि जो डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल हैं सिर्फ वो ही स्टेबिलिटी की क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, क्योंकि एज टी टेंड्स टू इनफाइनाइट सिस्टम रेस्पॉन्स इज गोइंग टू जीरो और अप टू ए फाइनाइट वैल्यू, देन ओनली the decreasing exponential only will satisfy the criteria of stability condition. So हमारा हमारा जो पॉइंट है वो पॉइंट क्या था, e to the power alpha t for t greater than 0, e to the power beta t for t less than 0। तो हमें क्या करना है, इन दोनों एक्सपोनेंशियल को डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल बनाना है। तो t की वैल्यू पॉजिटिव है तो अल्फा शुड बी निगेटिव, और t की वैल्यू निगेटिव है तो अल्फा शुड बी पॉजिटिव। सो दिस इज द कंडीशन। सो जो दोनों कर्व्स हैं वो क्या होने चाहिए, डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल होने चाहिए। इन दैट केस ओनली सिस्टम वुड बी स्टेबल सिस्टम। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके का, डिस्क्रीट टाइम सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन है। एच एन इज इक्वल्स टू मोड अल्फा टू द पावर एन, मोड रहने दो, अल्फा टू द पावर एन for n greater than equal to 0 and beta to the power n for n less than 0. System is stable only if option A, mod A is less than 1, mod alpha is less than 1, mod beta is less than 1, option B greater than 1, beta is less than 1, greater than 1, mod beta is also greater than 1, option D alpha is less than 1, beta is greater than 1। ठीक है, अगेन इसमें क्या करना होगा, हमें डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल लेना होगा, या तो ये निगेटिव हो या ये निगेटिव हो, दोनों में से कोई एक भी अगर निगेटिव होगा, इन दैट केस, या निगेटिव होगा अगर ये वाला, सपोज अभी हमें क्या करना होगा, इसको इस तरीके का कर्व बनाना होगा, इसका भी और इधर भी। ये दोनों कर्व कब बनेंगे, या तो ये लेस देन 1 हो, और अगर ये पॉजिटिव है तो, और ये अगर निगेटिव है तो ये ग्रेटर देन 1 हो। इन दैट केस अल्फा शुड बी लेस देन 1 एंड बीटा शुड बी ग्रेटर देन 1, तो डी शुड बी द आंसर। अगर ये निगेटिव हो गया है, अगर n निगेटिव है तो बीटा को पॉजिटिव होना पड़ेगा, यानी कि बीटा को ग्रेटर देन 1 होना पड़ेगा। अगर ये पॉजिटिव है तो इसको लेस देन 1 होना पड़ेगा। इन दैट केस ओनली सिस्टम वुड बी स्टेबल। Check the stability of the system if ht is equals to sin t. Check stability. So for ht is equals to sin t, condition is minus infinity to infinity, h tau d tau should be less than infinite,
So minus infinity to infinity sin t dt should be less than infinite. तो इसकी वैल्यू देख लेते हैं. इसकी वैल्यू आती है माइनस कॉस टी माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटिव, और कॉस इंफिनिटिव की वैल्यू क्या हो जाती है, इंफिनिटिव, और प्लस इंफिनिटिव और माइनस इंफिनिटिव. तो सिस्टम इज अनस्टेबल. ठीक है, चेक करो स्टेबिलिटी. और एच टी इज इक्वल्स टू यू टी, सॉरी एच एन ले लो, यू एन, इट वुड बी n is equals to minus infinity to infinitive un should be less than 0. देखो इसमें क्या होगा, ये वाली वैल्यू कैसे हो जाएगी, ये वाली वैल्यू हो जाएगी n is equals to 0 to infinitive 1, ऐसे हो जाएगी 1, या यू एन आ जाएगी, यू एन इस पर हो जाएगा नहीं. इसको ये क्या हो जाएगा आपका, यू ज़ीरो प्लस यू वन प्लस यू टू प्लस यू थ्री अप टू यू इनफाइनाइट. तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू infinite. So this value is equals to infinite. So system will be unstable. ठीक है, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखते हैं. If hn is equals to 3un plus 3 minus 2un minus 1 minus un minus 2, सॉरी माइनस un minus 5. ठीक है, ये एक सिग्नल दिया हुआ है. इस सिग्नल की चेक करो, चेक स्टेबिलिटी एंड कॉजलिटी ऑफ द सिस्टम. जो सिस्टम दिया हुआ है इसकी स्टेबिलिटी और कॉजलिटी चेक करनी है. तो 3un प्लस 3 क्या होगा, -3 से चल के आ रहा होगा, ये +3 है तो -3 से चल के आ रहा होगा, 3 3 3, ये 3 चल रहा होगा, -2 -1, 0 पर भी 3 होगा, और 1 पर आकर 3 में से 2 कम हो जाएगा. तो 3 में से 2 कम होगा, है ना, 3 में से 2 कम हो जाएगा. तो यहाँ मिलेगा आपको माइनस ये 1, 1 से लेके 2 3 4 तक आपको मिलेगा 1, और 5 पर आकर आपका क्या हो जाएगा 0. ये 5 6 7 8. So this is gen. इसको लिखोगे अगर, 3 पर स्टेप कितना है, +3, 3 से लेके 1 तक, 1 पे क्या हुआ, एक स्टेप डिक्रीज हुआ, 3 से लेके 1 पे -2. 5 पर क्या हुआ, एक और स्टेप डिक्रीज हुआ 1 से 0 पर, तो -5. तो अब जरा देखो
कि अगर आप इसमें सबमिशन करते हो इनका, यानी कि एच एन इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एच एन कैलकुलेट करते हो, तो क्या इन सब का सबमिशन कर सकते हो? कर सकते हैं। 1 2 3 4 +3 +3 +3 +3 सबका सबमिशन कर दोगे तो वैल्यू आ जाएगी 1 2 3 4 12 +4 16, सीधे सीधे। यस, इट इज स्टेबल, it is stable, but is it causal? No, it is not causal, because the values are depending upon the future value, or it is existing on the negative axis. So it is not causal, stable but not causal. यहाँ से पता लग गया। अच्छा, अगर ये हमेशा आगे तक जाता, इन्फिनिटी तक जाता, या इधर इन्फिनिटी तक जाता, तब ये सिस्टम स्टेबल नहीं होता। अगर ये कुछ फाइनाइट सैंपल्स उसमें हैं, देन ओनली इट विल बी स्टेबल। तो यहाँ पर कुछ फाइनाइट सैंपल्स हैं। अगर ये इन्फिनिटी तक जाता, तो यूएन के केस में क्या हो रहा था, 0 से लेके 1 2 3 4 सब तक, इनफाइनाइट तक वैल्यू 1 थी, इसलिए सबमिशन जो था वो इनफाइनाइट था। बट इफ वी हैव फाइनाइट सैंपल्स, देन द सिस्टम वुड बी स्टेबल। ठीक है। अगर यहीं पे 2 होता, यहीं पे 2 होता, तो 1 से लेके यहाँ पे क्या आ जाता, -1, ये इस तरह, और ये कहां तक चलता, इनफाइनाइट तक। इन दैट केस सिस्टम इज नॉट स्टेबल, नॉट causal, not stable, not causal। ठीक है। एक और बड़ा अच्छा सा कॉन्सेप्ट देखते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट जब आप अप्लाई करेंगे एक्सरसाइज में, देन ओनली यू विल गेट इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट। सपोज एक फंक्शन है h1t, दूसरा सिस्टम है h2t। सो h1t and h2t are inverse system only if h1t convolution h2t is equals to del t। Condition of invertibility is h1t convolution h2t should be equals to del t। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। Differential equation represented system। सपोज कोई एलआरसी सिस्टम है, और इसको अगर मैं, सपोज वी आई है, और इसके अक्रॉस, कैपेसिटर के अक्रॉस सपोज मैं वी नॉट ले रहा हूँ, आउटपुट वोल्टेज। सो द डिफरेंशियल इक्वेशन वुड बी वी आई टी इज इक्वल्स टू वी नॉट प्लस आर सी डी वी नॉट बाई डी टी प्लस
एल सी डी टू वी नॉट बाई डी टी स्क्वायर। ये कैसे लिखा है? आप इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स जब पढ़ेंगे, बेसिक इलेक्ट्रिकल्स और नेटवर्क थ्योरी, इन दैट केस यू वुड नो दैट एसी सर्किट्स जो होते हैं उनको आप कैसे लिखेंगे। तो अभी इसको आप एज इट इज ले लो। वी नॉट इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ टी। ठीक है। सो अगर मैं इसमें से वी नॉट कॉमन ले लेता हूं, तो वी नॉट इज इक्वल्स टू 1 प्लस डी बाई डी टी आर सी प्लस एल सी डी स्क्वायर बाई टी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी आई टी। अगर d by dt को, if d by dt is represented by d, in that case v naught t 1 plus d square r, sorry, drc plus d square lc is equals to vi t. So v naught t will be equals to vi t 1 plus drc plus d square lc, ऐसे लिख सकते हैं, है ना। तो कोई भी सिस्टम जो जिसमें एनर्जी स्टोर हो रही है, या जो स्टैटिक सिस्टम्स हैं, वो कौन से सिस्टम्स हैं? अगर कोई एलटीआई सिस्टम है तो उसका रिस्पॉन्स हम, अगर स्टैटिक है तो वो सिर्फ ए डेल्टी होगा। अगर उस सिस्टम में कहीं पर भी मेमोरीज हैं, स्टोरेज हैं, यानी कि वो डायनेमिक सिस्टम है, डायनेमिक सिस्टम है तो उसमें डिफरेंशिएटर और इंटीग्रेशन इन्वॉल्व होगा। In that case, there will be some storage of energy. In that case, the system will be represented in the form of a differential equation. ठीक है। सो जब भी हमारा जो सिग्नल है, अगर उसमें डी वाई टी बाई डी टी स्क्वायर की टर्म आ रही है, डी वाई बाई डी टी की टर्म आ रही है ना, ये टर्म्स अगर हमारे पास आ रही हैं, वाई टी की टर्म आ रही है, ये सिस्टम्स हम इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर सिस्टम्स में किसी भी रिस्पॉन्स या डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे पास इनका मल्टीप्लीकेशंस बन रहा है, डी टू वाई टी बाई डी टी स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन हो गया डी वाई बाई डी टी से, या फिर वाई स्क्वायर टी डी वाई बाई डी टी, यानी कि एक रिस्पॉन्स का दूसरे रिस्पॉन्स के साथ कहीं पर भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में इस तरीके से दिख जाता है, इन दैट केस सिस्टम इज नॉट लीनियर। ये ध्यान रखना। अगर कभी भी आपको इस तरीके से मिलता है, इन दैट केस सिस्टम इज नॉट लीनियर। ठीक है। सो इसमें हम लिखेंगे फाइनली एनी कंटिन्यूअस टाइम सिस्टम can be represented as differential equation as follows. So A2 d2y(t) by dt square plus A1 dy(t) by dt plus A0 is equals to B1 d
xt by dt प्लस बी नॉट xt। इस फॉर्म में हम किसी भी कंटिन्यूस टाइम सिस्टम को लिख सकते हैं। और अगर हमें कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, in that case also we can identify a system is linear or non-linear, time invariant or variant, stable or not stable। ठीक है, सो ये जो तीन पैरामीटर्स हैं कि सिस्टम इज एलटीआई और नॉट, स्टेबल और नॉट, ये सब हम डिफरेंशियल इक्वेशन को ऑब्जर्व करके निकाल सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। दैट विल वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास।